नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सुर्खियों को हम समेट कर हाजिर हैं आपके साथ। सबसे पहले नजरें अब तक की सुर्खियों। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, विकसित भारत 2047 रहा मुख्य एजेंडा। जल्द ही जारी होगा 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक बदलाव और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रधानमंत्री ने दिया विशेष जोर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीच में ही छोड़ी नीति आयोग की बैठक। माइक बंद होने के लगाए आरोप। आयोग ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री को मिला था पर्याप्त समय। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, शामिल हुए प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल की बदहाल कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी, राष्ट्रपति से लगाई गुहार। कहा राज्य में है अघोषित आपातकाल जैसे हालात। ममता बनर्जी की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 1 घायल। पाकिस्तानी घुसपैठिए की भी मौत, सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से की मुलाकात। रामायण और बौद्ध परंपरा की साझा विरासत पर विशेष स्टाम्प हुआ जारी। 14वीं ईस्ट एशिया विदेश मंत्रियों की बैठक में की शिरकत। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से आई अच्छी खबर। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पहुंची मनु भाकर। क्वालिफाइंग दौर में हासिल किया तीसरा स्थान। रविवार को होगा फाइनल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा। A Viksit Bharat, which is a developed India by 2047, cannot be achieved just by wishful thinking. You must have tangible goals which have to be pursued. And he said that the chief ministers have a major role in this, and that's why it was being discussed here. It is because a lot of the action for Viksit Bharat is the collective action of states. So his basic request to all the states is, please develop vision plans for yourself, for each state, because Viksit Bharat at the national level is an aggregation of a lot of Viksit states. And to tell you all, the good news is, over the last year, a lot of states have moved ahead in preparing vision documents. Uttarakhand has one, Uttar Pradesh has one, Gujarat has one, Tamil Nadu has one. In the pipeline, we have Goa, we have Madhya Pradesh, we have Chhattisgarh, we have Orissa, we have Assam, and we have a couple of other states also, Bihar, lining up to prepare vision documents. वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और सुधारों के जरिए आर्थिक सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया। He also talked about the positivity that is there for FDI around the world towards India. He wanted states to compete with each other to attract FDI to the country. So that, and he wanted a template to be prepared about how good states are. And the specific word he used is an investor-friendly charter. And start an investor-friendly charter and ranking states on how investor-friendly they are. So it's actually a modified version of EODB, ease of doing business, but actually a better one, where it will include a whole host of things like the legal system, what are the laws which are hindrances, what is the reduction in procedures which need to be simplified, what are the incentives that need to be given, how good is the law and order, how good is the transparency, how good is the infrastructure. So he's actually asked NITI to construct an index so states can compete in attracting FDI. End of the day, you can liberalize everything in FDI at the national level. But where the FDI flows is also important. And he made the point that if everything ends up in one corner of India,
It's not good for the country. It needs to flow to all corners of the country. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान राजनीति भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए तयशुदा समय दिया गया था और उसका पालन किया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच विवाद की खबर भी सामने आई, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान उन्हें बोलने के लिए पूरा टाइम नहीं देने का आरोप लगाया और कहा ये उनका अपमान है। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me. On behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. ममता बनर्जी के आरोपों को नीति आयोग के सीईओ ने सिरे से खारिज किया। Normally we would have gone alphabetically. So it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted. And the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 00. Nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए समय का प्रावधान किया गया था और सभी सीएम को बोलने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने ये झूठ बोला है कि उनका माइक बंद करा दिया गया। Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. इस बीच पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया। पीआईबी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहाँ तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। नीति आयोग की बैठक वैसे तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए थी, लेकिन जहां एक और विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो ममता बनर्जी के गलत आरोपों के पीछे भी राजनीतिक वजह साफ झलकती है। मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद के साथ तेजी से राज्यों के विकास पर काम कर रही है, लेकिन राजनीति इसके आड़े आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मच्छिल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात गोलीबारी की घटना में सेना के 4 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भी मारा गया। गोलीबारी में राइफलमैन मोहित राठौड़ शहीद हो गए। चिनार कॉर्प्स ने घटना पर संवेदना जताते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान जताया है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में लगी है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कामकारी इलाके में इनकी खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी।
पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा है और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में अघोषित आपातकाल है और मौलिक अधिकार बस सपना बनकर रह गए हैं। उन्होंने लिखा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के क्रूर रवैये के कारण पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी विरोधी दलों पर हुए अत्याचार का भी जिक्र किया गया। इसमें न केवल बहुत से लोगों की जान गई बल्कि रोजी रोटी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली की घटना के साथ साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद में दंगे कराए जाने का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर यह आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। यदि कोई उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो उन्हें मार दिया जाता है। विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता है। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में रामनगर जनपद का नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रहार किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को भगवान श्री राम के नाम से एलर्जी है। ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का कहना है कि राम सेतु से लेकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक कांग्रेस और उसके सहयोगी हर जगह राम नाम का विरोध करते हुए देखे गए हैं। भाजपा ने पूछा है कि कांग्रेस को एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भगवान श्री राम से इतना बैर क्यों है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी ऐसी ही मानसिकता दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने भी इंद्रधनुष के लिए बांग्ला शब्द रामधेनु को बदलकर रंगधेनु कर दिया। ये दिखाता है कि भगवान श्री राम के विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी मातृभाषा से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? कर्नाटका में जहां पर खटाखट लूट चल रही है, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, वहां पर जन समस्याओं को सुलझाने के बदले रामनगर का नाम बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? रियल एस्टेट के दोस्तों को मदद पहुंचानी है, उनसे कुछ लेना देना है, या प्रभु श्री राम के प्रति इतनी उदासीनता और नफरत है? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा रामनगर जिले का नाम बदले जाने पर भाजपा ने नाराजगी व्यक्त की है। विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार ने कहा कि राजनीतिक कारणों से रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला कर दिया गया है, लेकिन कुछ भी विकसित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव के बहाने इस तरह काम करना शुरू किया है और जनता इसका करारा जवाब देगी। कर्नाटक में डीके शिव कुमार रामनगरा जिला को एक नया नाम दिया है, बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट। क्यों के लिए नया नाम रखे हैं? वो जनता को ब्लैकमेल करने के लिए, आगे चुनाव उपचुनाव आने वाले हैं इसलिए क्या ऐसा बुलाए? ये सब जनता डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। एक एप्ट डिसीजन, एक बहुत अच्छा डिसीजन जनता लेने वाला है। इसलिए हम आगे जाकर हम जनता के बीच में जाएंगे। डीके शिव कुमार का, सिद्धरामैया का, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का ऐसे ब्लैकमेल करना ये नहीं चलता है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विपक्ष हल्ला कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस पर इस योजना का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर करारा प्रहार किया। पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना और युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को विपक्ष ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण की घोषणा की। इन राज्यों में पुलिस से लेकर पीएसी और फॉरेस्ट फोर्सेज में अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा की सरकार ने
पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की। हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का पहले ही ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या विपक्ष केवल अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जुबानी चिंता जाहिर करता है, लेकिन अपने राज्य में अग्निवीरों के कल्याण के लिए किसी तरह का कोई नया ऐलान नहीं करता। ये ऐसी परंपरा विपक्ष ने शुरू कर दी है कि कितने भी देश हित की योजना बनाए, कितनी भी जन कल्याणकारी योजना बनाए, उनकी नज़र पर चश्मा नकारात्मक सोच का चढ़ा है और वो केवल उसका विरोध करने का काम करते हैं, केवल उसकी खामियां निकालने का काम करते हैं, उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके, उसकी देश हित की योजनाओं के बारे में जनता के लाभ की स्थिति को नज़रअंदाज करके विपक्ष केवल बुराइयां खोजता है। अग्निवीर जैसी महत्वाकांक्षी योजना, अग्निवीर जैसी जन कल्याणकारी और देश जैसी योजना भी विपक्ष की इसी राजनीति का शिकार हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट को लेकर कहा कि इस बजट में युवाओं और उनके लिए रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रोजगार और युवा लक्ष्य, मध्यम उद्योग लक्ष्य और मध्यम वर्ग के लिए ये बजट उसके जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। ये बजट से प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी पूर्तता करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस बजट रखेगा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के गुवाहाटी में केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट को पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पैकेज भी रखा गया है। डोनर मंत्रालय का बजट का आवंटन भी जो 1775 करोड़ रुपए होता था उसे बढ़ाकर करीब 6000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बजट में विशेष पैकेज रखा गया है, उसमें असम और सिक्किम को भी रखा गया है। सभी राज्यों के साथ मिलकर योजना भी हम लोग बनाएंगे और उस बजट प्रावधान का पूर्ण इस्तेमाल भी केवल असम नहीं लेकिन बाकी सरकारें भी करें, ये हमारी कोशिश भी रहेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जबकि आज 5वें स्थान पर है। 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए बजट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में शायद 11वें या 10वें स्थान पे थी। वहां से चलते चलते आप पहुंच गए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। ये असंभव है कि अगर ये हमारे 11 मोदी जी के समय के 11 बजट अगर ठीक नहीं होते तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और जा रही है तीसरे स्थान पे, हो ही नहीं सकता। देश में स्टार्टअप की संख्या 1,40,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कर्नाटक 15,019 स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर, दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ 5वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में 19 कार्यवस्तुएं शामिल की गई हैं, जो सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप की स्थापना की। झारखंड के पाकुड़ स्थित केकेएम कॉलेज के छात्रों ने पुलिस पर हॉस्टल में घुसकर मार पिटाई का आरोप लगाया है। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल कॉलेज के छात्र बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। योजना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छात्रावास में घुसकर छात्रों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों पर कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घायल छात्रों की तस्वीर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की क्या वजह है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। साहस और प्रतिबद्धता के बल पर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा सीआरपीएफ के जिम्मे है। देश के सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की आज 86वीं स्थापना दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बल के 24 शूरवीरों और मरणोपरांत वीरता पदक प्राप्त करने वाले 3 शहीदों की वीर नारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया। सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के बल पर देश के सबसे पुराने और प्रीमियम अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली स्थित शौर्य सीआरपीएफ अधिकारी ट्रेनिंग संस्थान में सीआरपीएफ के 24 बहादुर जवानों को असाधारण वीरता और पराक्रम के लिए पुरस्कृत किया। इनके साथ 3 शहीद सैनिक की पत्नी वीर नारियों को मरणोपरांत दिया गया। जे&के के टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नक्सलवाद एरिया के LWE एक्सट्रीमिज्म में पिछले 80 सालों से देश की कानून व्यवस्था में सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस विशेष मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल ने कहा कि सीआरपीएफ के बल ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतर पुलिस बल बनाने का लक्ष्य है। जिस तरीके से फोर्स तैयारी कर रही है कि जैसे अगर कोबरा को बोला जाए कि नक्सलियों के खिलाफ, तो कोशिश ये है कि वो देश की ही नहीं विश्व की सबसे अच्छी जंगल वॉरफेयर की फोर्स बने। टेररिस्ट से लड़ने के लिए जो कश्मीर में, जम्मू में सीआरपीएफ डिप्लॉयड है, उसमें हम लोग ने हर जगह QATs बनाई हैं, हर बटालियन में। तो उनकी भी क्षमता जो है वो भी अर्बन वॉरफेयर और उस तरह के टेररिज्म से लड़ने की बेस्ट होनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना आजादी से पहले 1939 में अंग्रेजों ने की थी। तब इस बल का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद में एक अधिनियम लाकर इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। केवल 1 बटालियन से शुरू आज यह 248 वाहिनियों के साथ एक बड़ा संगठन बन चुका है। हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने बेजोड़ और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने अदम्य साहस, असाधारण वीरता और पराक्रम के बूते पर बल के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा करी और लक्ष्य को पूरा किया और विजयी रहे। भावना नैयर के साथ कैमरामैन जगमोहन, DD न्यूज़, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ PDR की राजधानी वियंतियाने में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि EAS प्रोसेस को अगले साल 2 दशक पूरे हो जाएंगे और भारत एक मजबूत EAS प्रक्रिया में योगदान देगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से आसियान एकता और केंद्रीयता पर कायम रहेगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासित के साथ खास बैठक की।
बैठक में उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही साथ भारत और लाओ पीडीआर में रामायण और बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्टैम्प सेट लॉन्च किया। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग के तहत लाओ के लिए 10 क्विक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच डिजिटल समाधान साझा करने पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31वें क्षेत्रीय आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस में हैं। आज उन्होंने लाओस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन निशानेबाजी में भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में स्थान बना लिया है। मनु 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने पहली सीरीज में 97, दूसरी सीरीज में 97 और तीसरी में 98, चौथी में 96, पांचवी में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। रिदम सांगवान ने 573 अंकों के साथ 15वें स्थान पर वे रही और फाइनल रविवार को खेला जाएगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।